Hello students, good morning all of you. How are you all? Today in this video I am going to continue chapter 6 of Vistas, which is on the page of 8. Alright, it is written by Susan Hill. Fine. In my previous video I completed up to page number 66. Fine. See, there are 3 scenes in the play. See, scene 1, Mr. Lamb's garden. Alright. Scene 2, Diary's home. Scene 2 is Diary's home. Scene 3, again Mr. Lamb's garden. Alright. So now we are going to discuss scene 2. Which one? Scene 2. Alright. Where will it take place? It takes place at Diary's home. And another character, that is Diary's mother. Fine. So see what she says to Diary. Mother, you think I don't know about him. You think I haven't heard things. Diary's mother saying to Diary that he thinks that she does not know anything else about him. You think I haven't heard things. और आपको यह भी लगता है कि मैंने चीजों के बारे में सुना नहीं है. Diary, you shouldn't believe all you hear. See the effect of the interaction with Mr. Lamb. यानी Mr. Lamb से जो Diary का कन्वर्सेशन हुआ था उसका जो चेंज है ना, उसका रिजल्ट यहाँ पर दिख रहा है, आराम से दिख रहा है. In the beginning when he was interacting with Mr. Lamb and he told about the incident that happened at the bus stop. यानी उसने उस इंसिडेंट के बारे में बताया था जो बस स्टॉप पर हुई थी. Can you remember the incident? The incident was that there was a woman. She was looking at Diary's face and then she was discussing about his face and she was saying that see, the most terrible thing in the world only a mother could love. ठीक है? First of all, Mr. Lamb replied that they might be talking about something else. Why do you think that they were talking about you only? Then later Diary said that I know, I heard it properly. They were talking about me only. Then Mr. Lamb said, so you believe in everything what you hear. The same thing is Diary saying here. अपनी माँ से कह रहा है, यानी you shouldn't believe all you hear. आपको हर सुनी हुई चीज में बिलीव नहीं करना चाहिए. Being told, warned. See the meaning of being told. Being told means I have been told. Alright. One day I have been warned. ठीक है? We have not lived here 3 months. Alright. But I know what there is to know. Diary's mother is saying to Diary that she knows whatever is to know about Mr. Lamb. ठीक है? यानी Mr. Lamb के बारे में जो भी चीजें जानने की हैं वो सब उसे पता है. ठीक है, वो जानती है. And you are not to go back there. आपको वहां पर नहीं जाना है. Alright? Diary, what are you afraid of? What do you think he is? आप क्यों डरे हो? आपको क्या लगता है वो क्या है? An old man with a tin leg. An old man with a tin leg. यानी एक old man है जिसके टिन की लेग है. And he lives in a house. और वो एक बड़े घर में रहते हैं. Huge house without curtains and has a garden. यानी इनके घर में कर्टेन्स भी नहीं है और उनके गार्डन है. And I want to be there. और मैं वहां पर जाना चाहता हूँ. And sit and listen to things. Listen and look. ठीक है? Listen to what? क्या सुनना चाहते हो?
बीच सिंगिंग हिम टॉकिंग। यानी अब देखिए पहले क्या कह रहा था कि बीच क्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं बजिंग करते हैं, लेकिन मिस्टर लैम के इंटरेक्शन में मिस्टर लैम के जब से भी उसकी मीटिंग हुई है तब से उसकी थिंकिंग क्या हो गई है, चेंज हो गई। तो क्या कह रहा है, बीच सिंगिंग हिम टॉकिंग, उसे बात करते हुए सुनना चाहता हूँ और उसके बीच को सिंगिंग करते हुए सुनना चाहता हूँ। एंड व्हाट ही गॉट टू से टू यू, अच्छा क्या बात करनी है उसको आपसे वैसे, थिंग्स दैट मैटर, वो चीजें जो मैटर करती हैं, थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड। मैंने बताया था मिस्टर लैम वाज टॉकिंग पेक्यूलियरली टू डैरी, यानी स्पेशल चीजें बता रहा था, विशिष्ट बातें कर रहा था, वो चीजें नहीं कर रहा था, वो बातें नहीं कर रहा था जो बातें बाकी दूसरी लोग करते थे। ठीक है, थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट, वो चीजें जिनके बारे में मैं थिंक करता हूं, मैं सोचता हूं। देन यू स्टे हियर एंड योर थिंक डू योर थिंकिंग योर बेस्ट ऑफ हियर। डायरी की माने कहा तब तो फिर तुम बेटा यहीं रुको और आप अपनी यहीं पर थिंकिंग करो। ठीक है, I hate it here. Earlier the boy did not want to see anybody else. He did not want to meet anybody else. He was a defiant and withdrawn. But now, after coming in the contact of Mr. Lamb, he is saying that I hate it here. मुझे यहाँ बुरा लगता है, मैं नफरत करता हूँ इन चीजों से। मदर क्या कहती है, You can't help the things you say. You can't help the things you say. I forgive you. It's bound to make you feel bad things and say them. I don't blame you. Daddy, it's got nothing to do with my face. यानी देखिए पूरी की पूरी तरह से थिंकिंग क्या हो गई है, चेंज हो गई है। यानी कि इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस, यानी मेरे फेस से मेरे एटीट्यूड का कोई लेना देना नहीं है। एंड व्हाट आई लुक लाइक, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसा लगता हूँ। आई डोंट केयर अबाउट दैट, मैं इसके बारे में केयर भी नहीं करता। एंड इट इजंट इम्पोर्टेंट, और ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है। यानी कि नाउ अकॉर्डिंग टू डेरी व्हाट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ, दैट इज एटीट्यूड, दैट इज थिंकिंग। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से क्या हो गया, चेंज हो गया है। इट्स व्हाट आई थिंक एंड फील एंड व्हाट आई वांट टू सी, जो चीजें मैटर करती हैं वो ये हैं, व्हाट आई थिंक, व्हाट आई सी, ठीक है, एंड व्हाट आई वांट एंड व्हाट आई फील एंड फाइंड आउट एंड हियर, ये वो चीजें हैं जो मैटर करती हैं। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, मैं वहां जा रहा हूं, ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स, यानी आई एम गोइंग टू हेल्प मिस्टर लैम इन हिज क्रैब एप्पल्स। ठीक है, क्रैब एप्पल्स में मैं उसकी हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ। ओनली टू हेल्प हिम विद क्रैब एप्पल्स, ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, बट आई एम गोइंग, लेकिन मैं जा रहा हूँ। यू विल स्टॉप हियर, माँ अभी भी चिल्ला रही, नहीं बेटा तुम यहीं रुकोगे। डैडी ओ नो नो नो, बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर, लेकिन क्योंकि आज अगर मैं नहीं गया ना बाहर यहाँ से, I'll never go anywhere in this world again, तो इस दुनिया में मैं ना कभी भी बाहर नहीं जा पाऊंगा। Exactly he is saying the right thing, क्योंकि मिस्टर लैम इज द ओनली पर्सन हु मोटिवेटेड हिम, जिसने उसे क्या किया था, मोटिवेट किया था, जो उसे अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला था, जिसने उसके वे ऑफ लिविंग लाइफ को ही क्या कर दिया था, चेंज करके रख दिया था। तो इसीलिए वो कह रहा है कि अगर आज नहीं गया तो मैं फिर नहीं जा पाऊंगा। और ये कहता हुआ भागता हुआ चला जाता है। द डोर स्लैम्स, दरवाजे को धड़ाम से बंद करता है। डायरी रन्स पार्टिंग पेंटिंग, डायरी जो हाँपते हुए चला जाता है। ठीक है, द साउंड ऑफ हिज पेंटिंग फेड्स, यानी घर से जैसे ही निकल जाता है तो उसके हाँपने की जो आवाज है ना, वो क्या हो जाती है, फेड हो जाती है, यानी धीमी हो जाती है। ना सीन 3, कौन सा सीन स्टार्ट हो गया, सीन 3। मैंने आपको बताया था कहां पर हुआ था ये, फिर से मिस्टर लैम्स गार्डन। ठीक है, मिस्टर लैम्स गार्डन, गार्डन साउंड्स, द नॉइज ऑफ द ब्रांच शिफ्टिंग, एप्पल्स थम्पिंग डाउन, द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन। ठीक है, ये आवाजें आ रही हैं, ऐसी एक्टिविटी हो रही है। मिस्टर लैम्स स्टडी, दैट्स गॉट इट, अपने आप से बात कर रहा है। दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल, एप्पल्स गिर जाते हैं। अ क्रीक, अ क्रैश, यानी एक चरचराने की आवाज आती है, किसी चीज के क्रैश होने की आवाज आती है। द लैडर फॉल्स बैक, जो सीढ़ी जिस पर चढ़ करके मिस्टर लैम जो एप्पल्स को तोड़ रहे थे वो क्या हो जाती है, फॉल्स बैक, पीछे की ओर गिर जाती है। मिस्टर लैम विद इट, और इसके साथ में कौन गिर जाते हैं, मिस्टर लैम भी गिर जाते हैं। अ थंप, एक थंप की आवाज आती है। द ब्रांच स्विशेस बैक, ब्रांच क्या होती है, पीछे की तरफ झूल जाती है। क्रीक्स, फिर से चरचराहट की आवाज आती है। देन साइलेंस, डैरी ओपन्स द गार्डन गेट स्टिल पेंटिंग, और डैरी भाग करके जो गार्डन के गेट पर पहुंच जाता है, गेट को खोल देता है, और अभी भी क्या कर रहा है, वो पेंटिंग कर रहा है। पेंटिंग का मतलब होता है क्या चीज, हाँपना, यानी तेजी से जब हम थक जाते हैं जल्दी सांस लेते हैं ना,
तो उसे कहते हैं पेंटिंग, ठीक है। डेरी, यू सी आई केम बैक, मैं वापस आ गया। यू सेड आई वुडंट, आपने कहा था कि मैं नहीं आऊंगा, एंड दे सेड बट आई केम बैक, और मेरे पेरेंट्स ने भी कहा था कि तुम नहीं जाओगे, बट आई केम बैक, आई वांटेड। ही स्टॉप्स, डेड साइलेंस, एंड मिस्टर लैम क्या हो जाता है, डेड हो जाए, मर गया, ठीक है। साइलेंस, मिस्टर लैम यू हैव, ही रन थ्रू द ग्रास, वो घास में दौड़ता हुआ घुटनों के बल बैठ जाता है मिस्टर लैम के पास जाकर के। मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट, मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट, यू फेल, आप गिर गए, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट, ये सब ठीक है। साइलेंस हो जाती है। आई केम बैक, लेमी लैम आई डिड कम बैक, मैं वापस आ तो गया। डेरी बिगिंस टू वीप, और डेरी क्या करने लगता है, जैसे डेरी को पता चलता है कि क्या नाम है मिस्टर लैम मर चुका है, तो वो रोना चिल्लाना शुरू कर देता है, और इस तरीके से प्ले एंड हो जाता है, ठीक है। सो ये प्ले है, ठीक है। इस प्ले के अंदर वो चीजें बताई गई हैं कि किस तरीके से सेंस ऑफ एलिनेशन जो लोगों को रोज पेन देता है, रोज प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चलो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ प्ले को आपके लिए, ठीक है, सम अप कर देता हूँ, सो दैट यू मे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। मिस्टर लैम बताइए आपको, डैडी बताइए, मिस्टर लैम 50 है और डैडी कितने का, 14 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। डैडी हाफ फेसेस बर्न, ठीक है, एसिड से जला हुआ है। मिस्टर लैम के क्या है, टिन की लेग है, ठीक है, ध्यान रखना। दोनों के दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दैट दे बोथ आर फिजिकली इम्पेयर्ड एंड डिसेबल्ड, ठीक है। फिजिकली इम्पेयर्ड है या डिसेबल्ड कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। पर देयर इज डिफरेंस इन देयर एटीट्यूड, उनके एटीट्यूड डिफरेंट हैं, यानी मिस्टर लैम हैज ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट टुवर्ड्स लाइफ, ठीक है। ही इज अ पॉजिटिव मैन, ठीक है। ही एंजॉयज हिज लाइफ, ठीक है। He likes the company of the people. He likes talking to the people. ठीक है। On the contrary, Derry कैसा है? Derry completely negative है, ठीक है। He has negative attitude, ठीक है। And he is in inferiority complex. He is the victim of inferiority complex. He doesn't like the company of the people. लोगों की कंपनी पसंद नहीं है, इसीलिए वो अकेला अकेला रहता है, ठीक है। क्योंकि अकेला अकेला इसीलिए रहता है बिकॉज पीपल जनरली एलिनेट हिम, क्या कर देते हैं उसे, एलिनेट करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं, यानी उससे बात करना पसंद नहीं करते। मैंने आपको बताया था कि फिजिकली इम्पेयर्ड पीपल फील पेन इन बोथ द कंडीशन, व्हेन वी एलिनेट देम एंड व्हेन वी शो एक्स्ट्रा सिंपैथी टू देम। जब भी हम उन्हें एलिनेट करते हैं तब भी पेन होता है उनको, और जब क्या नाम है एक्स्ट्रा सिंपैथी दिखाते हैं तब भी उन्हें पेन होता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस तरीके से बिहेव करना चाहिए कि उन्हें बुरा नहीं लगे, ठीक है। अच्छा, what happens one day Derry enters the garden of Mr. Lamb by thinking that no one is inside the garden, ठीक है। But unfortunately he is seen by Mr. Lamb and Mr. Lamb interrupted him very politely and very gently. वो कोई rudely नहीं था, very politely and gently, ठीक है। तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि mind the apples, आप एप्पल देख रहे हो क्या? तो इस तरीके से कन्वर्सेशन होता है। डैरी कहता है कि नहीं, I thought that the place is empty. तो क्या हुआ, हाँ एम्प्टी है, मैं तो इधर बैठा हुआ हूँ, तुम परेशान क्यों हो, किस बात को लेकर के परेशान हो? कोई दिक्कत नहीं है, आप आ गए तो देखो, आप अपने आप की केयर करना। यहाँ पर कुछ एप्पल्स गिर गए हैं हवा की वजह से, आप उनसे क्या हो सकते हैं, टकरा सकते हैं। तो इस तरह की बात है मिस्टर लैम से उसकी होती रही, ठीक है। फिर वो कहने लगा कि नहीं नहीं मैं यहाँ चोरी करने के लिए नहीं आया। अरे नहीं बेटा, आप चोरी करने के लिए नहीं आए। यंग लेट्स सी, छोटे छोटे बच्चे चोरी करते हैं। तो फिर वो बताता है कि आई एम 14 ईयर्स ओल्ड, मैं कितना बड़ा हूँ, 14 ईयर्स का हूँ। बोले आप थोड़ी नहीं चोरी करोगे। तो इस तरीके से कन्वर्सेशन के बाद में मिस्टर लैम से डैडी कहता है कि ना आई हैव गॉट टू गो। तो बोले चले जाओ, आप ही वो व्यक्ति हो जो क्या नाम है दीवार से चढ़ करके आए हो, बट ऑल द पीपल कम थ्रू गेट ओनली। कहाँ से आते हैं वो, गेट से ही होकर के आते हैं। द गेट इज ऑलवेज ओपन, आई लाइक द कंपनी ऑफ द पीपल, मुझे लोगों की कंपनी पसंद है, ठीक है। तो इस तरीके से बातें जब होती हैं तो डैरी का जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो मिस्टर लैम के सामने आता जाता है, ठीक है। और मिस्टर लैम ट्राई करता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस भरने की और उसको ये चीजें सिखाने की कि फेस कोई मैटर नहीं करता, एंड जो लोग कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वो काम करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। ही गिव्स एग्जांपल ऑफ ब्यूटी एंड, पहले तो एग्जांपल देता है कि देखिए आप वहां देखिए उधर क्या दिख रहा है,
तो वो कहता है कुछ नहीं, वीड है। क्या है? वीड्स है। ठीक है, तो बोले क्यों? एक प्लांट किसी के लिए वीड है और किसी के लिए ग्रास है, किसी के लिए हर्ब है, किसी के लिए फ्लावर है, डिफरेंस क्या? प्लांट तो सेम है। सो इट्स ऑल थिंकिंग, ये सब क्या है? थिंकिंग है। ठीक है, एक ही फ्लावर किसी और व्यक्ति के लिए तो वीड है, किसी दूसरे के लिए वही फ्लावर है, किसी के लिए वो हर्ब हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या लोगों की सोच है, तो आप लोगों की बातों पर मत जाइए। ठीक है, फिर एग्जांपल देता है आपने बीज का। किसका? बीज का। कि देखिए कुछ लोग कहते हैं कि बीज क्या करते हैं? बज करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि हम करते हैं। और आप लंबे टाइम तक अगर उनकी हमिंग को सुनते हैं, इट सीम्स दैट दे आर सिंगिंग, कि वो क्या करते हैं? सिंगिंग करते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद में ब्यूटी एंड बीज की कहानी सुनाता है जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अच्छा फिर वो बताता है कि अभी भी बच्चा जो है ठीक नहीं बिहेव कर रहा, अभी भी विड्रॉन और डेफिएंट जैसा बिहेव कर रहा है। तो उससे बात करता है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन, ही वाज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, एक आदमी था जो दुनिया में हर चीज से डरा हुआ था। अच्छा उससे पहले बस स्टॉप वाली कहानी बताई थी उसने, तो बस स्टॉप वाली मैं आपको 3-4 बार बता चुका हूँ। तो उस व्यक्ति के बारे में बताया, कुछ व्यक्ति को लगता था कि कोई बस मुझे कुचल सकती है, कोई आदमी मेरे ऊपर जंप छोड़ सकता है। जैसे कि आजकल देख रहे हैं आप, कोरोना फैल रहा है चारों तरफ और हम लोग मास्क लगा के जा रहे हैं, इसीलिए कि कहीं डेडली वायरस हमें नहीं लग जाए। तो ऐसा ही उस व्यक्ति को डर लगता था कि कोई व्यक्ति मेरे ऊपर डेडली जंप्स नहीं छोड़ दे। ठीक है, और ये भी डर लगता था कि कहीं डंकी मुझे किक नहीं कर दे, लात नहीं मार दे। और ये भी डर लगता था कि कहीं मैं जो है बनाना स्किन से फिसल नहीं जाऊं। ठीक है, या फिर कोई लड़की मुझे छोड़ के नहीं चली जाए, इस तरीके से वो डरता था। तो बोले फिर क्या हुआ? उसने अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लिया। अब कमरे में लॉक कर लिया, फिर क्या हुआ? हमेशा के लिए फुल फॉर अ व्हाइल। बोले फिर क्या हुआ? फिर क्या, एक तस्वीर गिरी एक दिन दीवार से और वो उसके ऊपर गिर गई और उसकी मौत हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से मिस्टर लैम जो है पॉजिटिव एटीट्यूड भरने की कोशिश करता है। अब तो उसे अच्छा लगता है। अब वो अपने चेहरे के बारे में बताता है कि ऐसे मेरे चेहरा जो है एसिड से जल गया था। फिर उसके 10 की लेग के बारे में बताता है, पूछता है कि तुम्हारी लेग में क्या हुआ था, क्या युद्ध में चली गई थी? बोले हाँ। क्या हुआ था? बोले बॉम्ब एक्सप्लोजन में ये उड़ गई थी। तो इस तरह की जब बातें होती हैं तो थोड़ा थोड़ा सा बच्चे के अंदर एटीट्यूड में चेंज आने लगता है। ठीक है, अगर चेंज आने लगता है तो वो कहता है कि मुझे घर जाना है लेकिन मैं वापस आऊंगा। बोले कोई बात नहीं, आप तो ये कहे आप शायद ही आओगे, क्योंकि लोग कई बार बहाना ढूंढते हैं। जैसे लोगों के लिए बहाना है आपका फेस और आपके लिए बहाना हो जाएगा मेरी टिन लैग या मेरा वे ऑफ एटीट्यूड, वे ऑफ लिविंग लाइफ। ठीक है, तो इस तरीके से कहता है, कह करके फिर कन्वर्सन नहीं मैं आऊंगा ये वो। फिर वो घर पर आ जाता है। घर पर आया तो उसकी माँ उससे मना करती है, क्योंकि उसकी माँ भी बिलीव नहीं करती मिस्टर लैम के बारे में। ठीक है, उसे नहीं लगता कि अच्छा व्यक्ति है तो उसे मना ही करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता, उसे सारी चीजें बता देता है। यानी अब वो डिफरेंटली बात कर रहा है अपनी माँ से, उसका एटीट्यूड पूरी तरह से चेंज हो चुका है। ठीक है, अब वो भी ऑप्टिमिस्टिक व्यू बना चुका है अपना। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो घर से अपनी माँ की बात नहीं मानता, तेजी से दौड़ता हुआ चला जाता है मिस्टर लैम के गार्डन में। जब दौड़ता हुआ जाता है मिस्टर लैम के गार्डन में, ही फाइंड्स मिस्टर लैम डेड, वो मिस्टर लैम को मरा हुआ पाता है। ठीक है, और वो रोने लगता है। तो आप देख सकते हैं व्हाट इज दैट, ऐसी कौन सी चीज है जिसने दोनों लोगों को क्या कर दिया? यूनाइट कर दिया। ठीक है, अर्लियर द बॉय डिड नॉट वांट द कंपनी ऑफ एनीबॉडी एल्स, ही डिड नॉट वांट टू टॉक टू एनीवन एल्स, नाउ ही befriended with Mr. Lamb and he starts weeping for him, क्योंकि वो दुनिया में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से प्ले वंडरफुल एंड इंटरेस्टिंग मैसेज देना चाहता, जबरदस्त मैसेज देना चाहता है सोसाइटी के लिए कि हम सोसाइटी वालों को थोड़ा सा ऐसे फिजिकली इम्पेयर्ड और फिजिकली डिसेबल्ड पीपल के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, हमें उनको एलिनेट नहीं करना चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो।